اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، ایک سوال جو اکثر لوگوں کے دلوں اور دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو ان کی قبر انور سے نکالنے یعنی چرانے کی کوشش کی گئی تھی؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، جی ہاں، تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اس طرح کی ناپاک سازشیں 4 مرتبہ کی گئی تھیں، یعنی 4 بار ایسی کوششیں کی گئیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خوفناک سازش کے بارے میں بتائیں گے جو تیسری بار رچی گئی تھی۔ یقین مانیے، جب آپ اسے سنیں گے تو حیران بھی ہوں گے اور آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور سب سے پہلے آپ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر شیئر کر دیجئے تاکہ یہ ایمان افروز واقعہ اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، مصر کی عبیدی حکومت کے حکمران الحاکم کے دور میں کچھ شیطانی سوچ رکھنے والے لوگ ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بادشاہ کو سبز باغ دکھائے اور کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان مدینہ منورہ جاتے ہیں اور روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں؟ کیوں نہ ہم اپنے ملک یعنی مصر میں بھی گنبد خضرا جیسی ایک عالیشان عمارت تعمیر کروا لیں، اور پھر اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر انور سے نکال کر اپنی اس گنبد میں لے آئیں تو دنیا بھر کے مسلمان زیارت کے لیے مدینہ شریف کی بجائے ہمارے ملک آنے لگیں گے۔ اس طرح ہمارا نام روشن ہوگا اور اہل مصر کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ دوستوں، مصر کا بادشاہ الحاکم ان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے حرام کے مال سے ایک عالیشان گنبد تعمیر کروائی۔ پھر اس نے اپنے ایک قریبی ساتھی ابو الفتوح کو حکم دیا کہ وہ مدینہ شریف جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرا کر لے آئے۔ ابو الفتوح ایک ساتھی کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہی فاصلے پر اس نے ایک مکان کرائے پر لیا اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ ان دونوں نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا مانو بڑے اللہ والے ہوں۔ نماز اور روزے کی پابندی کرنے لگے، ہر وقت تسبیحات میں مشغول رہتے تاکہ لوگ انہیں پرہیزگار سمجھیں۔ اس طرح وہ جلدی ہی مدینہ کے لوگوں کے قریب ہو گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر انور سے نکال کر لے جانا۔ اس کے لیے اس نے ایک خطرناک پلان بنا رکھا تھا۔ دن بھر وہ عبادت کرتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، مگر جیسے ہی رات ہوتی وہ اپنے مکان کے اندر سرنگ کھودنا شروع کر دیتا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سرنگ کھودتے کھودتے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ جو مٹی نکلتی اسے رات کے اندھیرے میں ٹھکانے لگاتا اور جگہ کو اچھی طرح سے ڈھک دیتا۔ اس طرح کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کسی کو ذرا بھی شک نہ ہوا۔ پھر ایک دن اس وقت کے بادشاہ سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوئے ہوئے تھے۔ انہیں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ خواب میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نور الدین، تمہاری حکومت میں کچھ لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تمہاری ریاست میں 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ناپاک منصوبہ بنا رکھا ہے، وہ میرے شہر میں آ کر مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ دوستوں، خواب میں ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں بھی سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دکھائی دیں۔ بادشاہ نیند سے اٹھ کر کانپ گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میری حکومت میں کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ فوراً اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا، پورا واقعہ بیان کیا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ اے بادشاہ، لگتا ہے مدینہ شریف میں بہت بڑی سازش چل رہی ہے، ہمیں جلد سے جلد مدینہ پہنچنا چاہیے۔ اس لیے سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وزیر اور کچھ فوجی دستے لے کر
मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने पूरे अहले मदीना को दावत दी, यानी मदीना के तमाम लोगों को दावत के लिए बुलाया। इस दावत का मकसद ये था कि जब लोग खाने के लिए आएंगे तो बादशाह उन शख्सों को पहचान सकेंगे जिनकी शक्लें उन्हें ख्वाब में दिखाई गई थीं, और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बस यही सोचकर मदीना शरीफ के सभी लोगों को दावत दी गई। बादशाह खुद दरवाजे पर खड़े होकर हर आने वाले को गौर से देखता। लोग खाना खाकर वापस जाने लगे तो सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हर एक आदमी पर गहरी नज़र डालते, मगर हैरत की बात यह रही कि वह दोनों शख्स कहीं भी नजर नहीं आए जिनकी शक्लें ख्वाब में दिखाई गई थीं। बादशाह परेशान हो गए और कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? जिन दो आदमियों को मैंने ख्वाब में देखा था वो तो इस पूरे मजमे में कहीं भी दिखाई नहीं। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरे मदीना शहर की छानबीन की जाए। अपने लोगों को भेजा कि जाकर देखो कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इस दावत में शरीक नहीं हुए। जांच के बाद बताया गया कि मदीना के सभी लोग दावत में शरीक हो चुके हैं सिवाय दो शख्सों के। वो दो बुजुर्ग एक मकान में रहते हैं और हमेशा इबादत में मशगूल रहते हैं, हर दम अल्लाह अल्लाह करते हैं और शायद इसी वजह से दावत में शरीक ना हुए हों। यह सुनकर बादशाह ने कहा, फ़ौरन उन्हें बुलाओ। जब उन दोनों को लाया गया, बादशाह नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने पेश किया गया तो जैसे ही उनकी शक्लें नजर आईं, बादशाह कांप उठे और फ़ौरन पहचान लिया। बादशाह ने कहा, यही वो दो आदमी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुराने के इरादे से आए हैं। इन्हीं के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मुझे फरमाया था कि मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मगर जब बादशाह ने शक्ति की तो उन्होंने अपने नापाक इरादे का इकरार कर लिया। उन्होंने बताया कि हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुराने के लिए आए थे और इसी मकसद से अपने मकान से रोजाना रसूल अकरम की तरफ सुरंग खोद रहे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि वो सुरंग इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि यह रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए थे, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक तक नजर आने लगे थे। उसी वक्त वहाँ मौजूद एक कारी साहिब ने सूरह तौबा की तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो लोग अहद करने के बाद अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन के खिलाफ बगावत करें तो उनसे लड़ो, बेशक उनकी कस्में बेकद्र हो चुकी हैं। इन आयत की तिलावत से पूरा माहौल गर्मा गया, लोगों के दिल कांप उठे। ये मंजर देखकर वो दोनों शख्स डर के मारे कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर हमारे सर कलम भी कर दिए जाएं हमें कोई अफसोस नहीं होगा, मगर अब हम कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ बुरे इरादे से नज़र तक नहीं उठाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि उसी वक्त ऐसी तेज आंधी आई कि महसूस हुआ मानो पूरा अर्श मुअल्ला हिल गया हो। अबू अल फतूह इस मंजर को देखकर कांप उठा और उसने तौबा कर ली। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ दाएं बाएं आगे और पीछे शीशे की दीवारें खड़ी कर दी जाएं ताकि कोई शख्स दोबारा ऐसी हिम्मत न कर सके। कहा जाता है कि बादशाह खुद उस सुरंग के अंदर तक गए। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को देखा तो रो पड़े, उनका बोसा लिया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फिर जितनी जल्दी हो सका उस सुरंग को बंद करवा दिया गया। दोस्तों, ये तो वो रूहानी वाक़या था जो हमने सुना, मगर आज हम देखते हैं कि सऊदी अरब बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। पिछले कुछ सालों में ऐसे ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में कुछ दशक पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। ये सच है कि वक्त के साथ बदलाव ज़रूरी होता है, वरना इंसान और मुल्क पीछे रह जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सऊदी अरब में बदलाव के नाम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को नापसंद हैं। लोग परेशान हैं, गवर्नमेंट से सवाल करते हैं और रोकने की मांग करते हैं। इनमें से सबसे अहम बात है मक्का मुकर्रमा और हिजाज मुक़द्दस की ऐतिहासिक निशानियों का मिट जाना।
याद कीजिए, यही वो सरजमीन है जहां आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की कब्रें हैं, घर है और बेशुमार नूरानी निशानियां मौजूद हैं। मगर तरक्की और डेवलपमेंट के नाम पर उन सब को मिटा दिया गया। उनकी जगह पर जो तामीरात हुई वो इन पाक जगहों की तौहीन मानी जा रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस वक्त मक्का मुकर्रमा अपनी 95% ऐतिहासिक विरासत खो चुका है, यानी वो कीमती निशानियाँ जिनसे मुसलमानों का दिल जुड़ा था उनमें से 95% ख़त्म हो चुकी हैं। और ये सब कुछ हुआ है ऊंचे ऊंचे टावर और आसमान की छूती हुई बुलंदी वाली इमारतों की वजह से। नए डेवलपमेंट के नाम पर इस्लामी तारीख की अजीम निशानियों को बड़ी तेज़ी के साथ मिटाया जा रहा है, जिनमें पुरानी मस्जिदें, बहुत से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की कब्रों के आसार, यहाँ तक कि उनके घरों के निशान तक मौजूद थे। जाहिर है ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नई नई ऊंची इमारतें खड़ी होंगी वह सऊदी अरब को लाखों करोड़ों डॉलर का मादी फ़ायदा पहुंचाएंगी, जबकि हम सब जानते हैं कि दूसरी तरफ मौजूद इस्लामी तारीख की निशानियाँ सऊदी अरब को कोई माली मुनाफा नहीं देने वाली। और यही वजह है कि सऊदी अरब ये सब कुछ अपने विजन 2030 के लिए कर रहा है। इसका असर हम पहले ही जिद्दा और रियाद जैसे शहरों में देख चुके हैं, जहां अब न सिर्फ बड़े बड़े म्यूजिक शो होते हैं बल्कि नाइट क्लब, बीच और इस तरह की कई बातें खुल चुकी हैं। और मोहम्मद बिन सलमान तो खुद अपने इंटरव्यूज़ में बार बार कहते हैं कि बहुत जल्द सऊदी अरब को दूसरा यूरोप बना देंगे। यानी जो लोग छुट्टियों पर यूरोप जाने का इरादा रखते थे, आने वाले दिनों में वही लोग यूरोप की जगह सऊदी अरब का रुख करेंगे, क्योंकि जिन चीज़ों की ख्वाहिश वो यूरोप से रखते हैं वही सब कुछ उनको सऊदी अरब में मुहैया कराया जाएगा। और जाहिर है इस मिशन पर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। मक्का की तारीखी निशानियों को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत अहम बात है, मगर उससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी शख्स इन सब मसाइल पर बात ही नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मुबारक घर जिसमें सन 570 ईस्वी में आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसे न सिर्फ गिरा दिया गया बल्कि उसे जानवरों की मंडी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन जब मक्का के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, तो मजबूरी में सरकार ने उस मंडी को हटाकर एक लाइब्रेरी बना दी। मगर सवाल फिर वही है कि इतने बड़े शहर में मंडी या लाइब्रेरी के लिए क्या कोई और जगह मौजूद नहीं थी? इतना ही नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मुक़द्दस घर जिसमें आप हिजरत के बाद मदीना में तशरीफ़ लाए, उसे भी पूरी तरह से गिरा दिया गया। वह घर असल में हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, जो आपके सबसे अच्छे सहाबी थे। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वह घर जिसमें कुरान की आयतें नाजिल हुईं, जहां आपकी 4 बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलथूम, सैयदा फातिमा और बेटे कासिम पैदा हुए, उस घर को भी गिराकर यात्रियों के लिए बैतुल खला में तब्दील कर दिया गया। मुस्लिम तारीख का पहला मकतब दारुल अरकम, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुरान की तालीम देते थे, उसे भी मस्जिद हरम की तौसी में मिटा दिया गया। जंगे उहद में जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक दांत शहीद हुआ था और जहाँ उन्हें दफन किया गया था, यानी उस दांत को दफन किया गया था, वह निशानी भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई। जमजम के कुएं के ऊपर बनी मेहराब हो या फिर बैतुल हुजूम, जहाँ सैयदा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा अक्सर इबादत किया करती थी, उसको भी गिरा दिया गया। जद्दा में उम्मुल बशर बीबी हवा अलैह की कब्र को भी कंक्रीट की दीवारों से ढककर मिटा दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र के आसार मिटा दिए गए। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की मस्जिद और उनका घर भी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। सिर्फ उनकी कब्र के चारों तरफ मामूली निशान छोड़ दिए गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना की कब्र को भी इस कदर मिटा दिया गया कि अब बस चंद ईंट पत्थर ही बचे हैं जिनसे लोग पहचान पाते हैं।
इसके अलावा भी कई कीमती इस्लामी यादगारें हालिया सालों में हुकूमती निज़ाम का शिकार होकर मिट गईं। सल्तनत उस्मानिया के ज़माने का मशहूर किला, जिसे 19वीं सदी में मस्जिदुल हरम की हिफाजत और निगरानी के लिए पहाड़ की बुलंदी पर बनाया गया था, उसे भी ढहा दिया गया। लोकल लोग इन हालात को देखकर परेशान होते हैं, मगर हुकूमत के सामने उनकी आवाज़ बेअसर है। अजीब बात यह है कि सऊदी अरब यूरोप की नकल करते हुए ऊंची इमारतें और शोहरत तो बना रहा है, लेकिन यूरोप से यह नहीं सीख रहा है कि अपनी तारीख और विरासत की हिफाजत कैसे की जाती है। यूरोप आज टेक्नोलॉजी में तरक्की कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सदियों पुरानी अपनी तारीखी इमारतों और निशानियों को संभाल कर रखा है। खासकर ब्रिटेन और इटली जैसे मुल्क, जहां उनकी विरासत को न सिर्फ महफूज किया गया है बल्कि पूरे फ़ख्र के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि कोई भी अक्लमंद कौम अपने इतिहास को नहीं भूलती। सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरानों ने भी मक्का और मदीना पर लंबा दौर हुकूमत की और उस दौरान कई तामीरात भी हुई, मगर उन्होंने कभी तारीखी आसार से छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि उनके दौर में मक्का और मदीना का जिस तरह एहतराम किया जाता था, उसकी मिसाल कहीं और मिलना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को उनके कब्र अनवर से चुराने की कोशिश की गई, और आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सऊदी अरब से किस तरह इस्लाम से जुड़ी हुई या इस्लाम की पहचान की निशानियों को मिटाया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ यूरोप बनाने की होड़ में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कोई जानकारी हासिल हुई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी हो। क्योंकि अगर हम अपना दीन, अपने इतिहास के बारे में जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।